Assalamu alaikum. Today we're going to continue with our chapter number 10 and we're going to start lecture number 20 today. Now, as I said in my last lecture as well, that what we're doing so far or right now is that we've just started the third portion of the book, which is basically covering the marketing aspect of doing a business. So this particular portion of your book, which contains 4 chapters, will basically make you understand what marketing is. We're going to tell you or explain to you what marketing concept is. We're going to define marketing for you. We're going to define target market for you. We're going to tell you what segmentation is. We're going to talk about consumer behavior as well. Then we're going to discuss 4 P's as well. 4 P's include product, pricing, placement and promotion. And for all of these P's individually, we're going to discuss them. We're going to discuss product in detail, product banti kaise है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होती है. देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट. प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो बहुत कम भी ना हो, जो बहुत ज़्यादा भी ना हो. देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रोडक्ट और प्लेसिंग योर प्रोडक्ट्स कि आप इंटरमीडियरीज को कैसे यूज़ करते हैं, होलसेलर्स को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, रिटेलर्स को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे. एंड फाइनली वी गोइंग टू टॉक अबाउट प्रमोशन एज वेल. प्रमोशन बेसिकली जब हम प्रमोशन का वर्ड यूज़ करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज advertising, but there's a lot more to promotion other than advertising. Promotion में बहुत सारी चीज़ें include होती हैं. So this is what our first chapter of the marketing portion of the book is, whereby we're going to understand the marketing processes कि market process क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें included होती हैं और consumer behavior क्या होता है. Again, I'm just going to go through the chapter outline very quickly of chapter number 10. We're going to discuss what marketing is. This is something that we did in our last lecture as well. We're going to talk about target marketing and segmentation. Today we're going to do this. We're going to talk about marketing research. We're going to talk about consumer behavior. We're going to talk about organizational marketing and buying behavior, international marketing mix and small business marketing mix. So these are the things that we will do today. Now what I'm going to do right now is I'm just going to start from where I ended my last lecture. Last lecture we were discussing the 4 P's. The 4 P's are also called as your marketing mix. And what are those 4 P's? Those 4 P's are your product, which is the actual product, something that you have in your hand. Then you have the price. Price is basically the amount that you pay to acquire a particular product. Then you have place. Place is basically placement or distributing your product कि जी manufacturer से customer तक product जो है वो क्या route लेती है कि जी वो manufacturer से customer तक transfer हो. And finally we're going to talk about promotion as to how do you communicate to your customers कि जी ये product market में आ गई है, इस product के ये features हैं, इस product के ये benefits हैं, इस product के ये ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है और आपकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करती है. सो प्रमोशन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग टू योर कस्टमर एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट. इट इज कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर थ्रू प्रमोशन. The first thing that we're going to talk about is the product. As I have said before as well, that whenever I say the product is a very generic name. It can include a number of things within itself. It can be a good, which is tangible. It could be a service, which is intangible. It could be an idea. It could be a person. It could be a place. Or in short, a product is anything which can fulfill a particular need and a particular want of an individual. So जिस चीज़ से individuals की, बंदों की, मेरी और आपकी नीड्स एंड वांट्स फुलफिल होती हैं, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. अगेन एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वांट यू टू बी वेरी क्लियर कि जी नीड और वांट में क्या फ़र्क है. नीड आर दोज थिंग्स दैट without which you cannot live. So जो absolute necessities होती हैं उसको हम need कहते हैं. खाना is a need, shelter is a need, clothing is a need. On the other hand, wants are those things जो कि necessities नहीं होती हैं, जो कि इंसान desire करता है. So those are called as a want. Now for example, if you're thinking कि जी cell phone जो है वो need है या want है, a basic cell phone becomes a need, right? Because आजकल people feel कि जी
getting in touch or being in touch with people is absolutely necessary these days. So maybe a cell phone is a need right now, but that cell phone could be any ordinary basic cell phone. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी मुझे iPhone चाहिए है, या मुझे HTC का 1X चाहिए है, या मुझे Samsung का S3 चाहिए है, then that becomes a want, that becomes a desire. So that's a distinction between a need and a want. A need is basically those things जो कि absolute necessary होती हैं, and want are those things जो कि desires होती हैं. जब भी हम product की बात करेंगे, हम product को हम product differentiation के aspect से भी पढ़ेंगे. You need to realize कि मार्केट में बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, वो सारी सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं और वो सारी एक ही नीड को या एक ही वांट को फुलफिल कर रही होती हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ कैन वन प्रोडक्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट. मैं एक प्रोडक्ट क्यों खरीदती हूँ और दूसरी प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदती, या मैं कहती हूँ कि जी वाई डू आई ऑलवेज आस्क फॉर कोक एंड नॉट आस्क फॉर पेप्सी. तो बोथ आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एक ही किस्म की नीड्स या वांट्स को फुलफिल करती हैं. लेकिन व्हाई डू आई ऑलवेज ड्रिंक और वांट कोक एंड नॉट पेप्सी? बिकॉज आई पर्सनली फील कि कोक का जो टेस्ट है वो पेप्सी के टेस्ट से बेहतर है. नाउ दिस इज व्हाट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज, whereby creation of a feature or an image that makes a product different from existing products to attract customers. So product differentiation basically is कि किन चीज़ों से, किन फीचर से, किस इमेज से, आप किस बेनिफिट से आप अपनी प्रोडक्ट को बाकी सारी प्रोडक्ट से अलग रखते हैं, या आपका जो कस्टमर है तो जब आपकी प्रोडक्ट यूज़ करे तो उसके जहन में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट ऐसी है, बाकी सारी प्रोडक्ट ऐसी है. बहुत सारे लोग जो होंडा की गाड़ियाँ चलाते हैं उनको वो टोयोटा पसंद नहीं करते. दे डोंट वांट टू शिफ्ट टू टोयोटा बिकॉज दे फील के जो होंडा सिविक या होंडा अकॉर्ड या लेट्स से होंडा सिटी की जो फीचर्स हैं वो टोयोटा गाड़ी में अवेलेबल नहीं है. सो डिफरेंशिएशन बेसिकली इज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिकली इज जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को बाकी सिमिलर प्रोडक्ट से जो कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप डिफरेंट बनाते हैं. डिफरेंट कैसे बनाते हैं? डिफरेंट फीचर्स देकर बना सकते हैं, डिफरेंट इमेज के साथ एक ऐसा इमेज क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट समझी जाए बाकी सारी कंपीटिंग प्रोडक्ट से. Then you have the price. Price is what you must pay to acquire a particular product. Now, जब भी आप price set करते हैं, you keep two things in mind. First up, you need to recover your cost. जो आपके expenses incur हुए हैं, जो आपकी cost आपने जो पैसे आपने खर्च किए हैं product को बनाने में, you need to recover all those costs and you need to recover all those expenses. और price जब भी आप determine करते हैं, कोई भी price आप determine करेंगे, उसमें the first aspect is, जब भी आप price determine करते हैं, it is first up आपने अपनी cost recover करनी होती है. The second thing that a price does is it attracts customers. How? As I said in the last lecture as well, आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आई है, right? And आपने अगर पूछा, for example, let's say you're going to buy a shoe and you went and you said कि जी इस shoe की क्या प्राइस है, and the person said 100 rupees. What you're going to do is कि यार ये तो बाहर का जूता है, 100 रुपये का कैसे हो गया, तो इम्पोर्ट हुआ होगा, इसकी ये प्राइस मुझे सही नहीं लग रही, इस जूते की प्राइस में कुछ घपला है, कुछ गड़बड़ है. There's something wrong with the price. It should not be so low. So a lot of time price is used to attract customers, right? And a lot of status conscious people who are very conscious of what they're buying would buy only stuff जिसकी price एक particular level की होगी. So price के दो reasons होते हैं price करने के लिए product को. One up, that you need to recover your cost, and second up, you need to attract your customers. And then when you're pricing your products, you have a high pricing strategy and then you have a low pricing strategy. A high pricing strategy is that you ask for as high a price as you can. Now once you're asking for a very high price, what happens is that your profit margin increases or you have greater profits per unit sold. For example, अगर आपका 500 की कॉस्ट थी और आपने 1500 की वो चीज़ बेची, that means आपको 1000 rupees का प्रॉफिट मिला, right? Now that means कि आप जितने यूनिट बेचोगे आपको हर यूनिट पर 1000 rupees का प्रॉफिट मिलेगा. So a high profit margin या high price strategy results in greater profits per unit sold. On the other hand,
When you have a low pricing strategy, आप प्राइस अगर कम रखते हैं, in that case आपका जो सेल्स वॉल्यूम होता है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज जितनी कम प्राइस होगी उस केस में क्या होता है, उस केस में जो आपकी डिमांड है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है. जब डिमांड ज़्यादा होगी दैट मीन्स मोर यूनिट्स विल बी सोल्ड एंड दैट मीन्स कि आपकी जो सेल्स है वो ऊपर जाएगी या सेल्स वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगी. सो व्हेन वी हैव हाई प्राइसेस देन यू हैव हायर प्रॉफिट्स पर यूनिट सोल्ड, एंड व्हेन यू हैव लो प्राइसेस you have larger or greater sales volume. Then you have placement. Placement can also be called place, या some cases में placement की जब हम बात करते हैं we also mean distribution. Distribution basically is getting product from the manufacturer or the producer to the customer and the consumer. So manufacturer से consumer तक, producer से customer तक जितना route होता है उसमें जो जो काम होते हैं वो placement के अंदर आते हैं. इसमें warehousing भी आएगा, इसमें ये भी आएगा कि आप storage कैसे कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय रोड भेजेंगे या बाय एयर भेजेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्लेसमेंट में आती हैं या प्लेस में आती हैं. अनदर एस्पेक्ट ऑफ प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी कि जी आप कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं. एंड व्हेन आई से चैनल आई बेसिकली मीन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ देयर आर बेसिकली 3 different channels of distribution that we will be doing right now. First up, the producer sells directly to the consumer. जहाँ पर जो बंदा प्रोड्यूस करता है वही डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता है. दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट चैनल, जहाँ पर कोई इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं है. द सेकेंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोड्यूसर सेल्स टू द रिटेलर एंड द रिटेलर सेल्स टू द कंज्यूमर. नाउ रिटेलर इज बेसिकली अ पर्सन जो प्रोड्यूसर से खरीदता है और फाइनल कंज्यूमर को बेचता है. एंड रिटेलर इज अ टाइप ऑफ एन इंटरमीडियरी. दैट्स योर second channel of distribution. Your third channel of distribution will have 2 different types of intermediaries, wholesalers and retailers. Wholesalers are those businesses जो कि producer से in bulk buying करते हैं या बहुत ज़्यादा तादाद में या बहुत ज़्यादा यूनिट्स एक साथ खरीदते हैं. That is what we call as wholesalers. Wholesalers आपके producer से खरीदते हैं और आगे retailer को बेचते हैं और retailer जो है वो आपके consumer को बेचता है. Now retailer और wholesaler में फ़र्क ये होता है कि retailer sells directly to the end user or the retailer sells directly to the consumer. On the other hand, a wholesaler cannot sell directly to the consumer. या generally cases में wholesaler जो है वो directly customer को नहीं बेचता है. And when we have wholesalers and retailers, and इन दोनों को हम intermediary का भी intermediary की भी term इनके लिए use होती है. या जब भी मैं intermediary की term use करूँ इसका मतलब है I'm referring to the wholesalers and the resellers. Now again at this point in time in this particular chapter हम अपनी discussion को इधर तक ही limit रखेंगे because we're going to have a whole chapter on distribution जहाँ पर हम ये channel of distribution या intermediaries के बारे में in detail discussion करेंगे. Now finally is your 4th P, which is promotion. Promotion is basically communicating information about your product to your customers. So that is what promotion is. Now promotion, as I said in the beginning of this lecture as well, कि जब भी हम promotion की बात करते हैं the very first thing that comes to anybody's mind is advertising. कि जी advertising होती है. That is just one of the tools used to promote a particular product. Now what we're going to do is we're going to discuss 4 different tools जिनको use करके कंपनीज जो हैं प्रमोशन करती हैं. The very first tool is called as advertising. Advertising is a paid non-personal communication used by an identified sponsor to persuade or inform potential buyers about a particular product. That is what advertising is. इस advertising की definition में आपको 2-3 चीज़ें बहुत clearly समझनी है. First thing is that advertising is a paid form whereby companies who want to promote their products pay to an advertising agency कि जी आप एक advertisement बनाएं. So it becomes a paid form of promotion. Free में नहीं होता है. Second thing, it's a non-personal communication. Now you need to make a distinction between personal communication and non-personal communication. Personal communication is when you and I are one-to-one, face-to-face talking to each other. That means Sarah is talking to, let's say, Ahmed. Now when Sarah is talking to Ahmed, that is what personal communication is. But on the other hand, when Sarah is talking to everybody in general, that becomes a non
पर्सनल एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोक का एड देखते हैं, क्या कोक का एड कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की तरफ टारगेट होता है? इज इट टारगेटेड टुवर्ड्स सारा, मरियम, अली, अहमद, आलिया? नो, इट इज नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स दीज 5 people. It is targeted towards everybody and anybody who wants to drink Coke, Pepsi, or who wants to drink a cold drink, right, or a carbonated drink. So that is why advertisements are called as non-personal. वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बनते, वो जनरल पब्लिक के लिए बनते हैं, और इसलिए उनको नॉन पर्सनल भी कहा जाता है। सो एडवर्टाइजमेंट इज योर वेरी फर्स्ट टूल ऑफ प्रमोशन, जिसमें आप एक पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है विच बिकम्स दी कंपनी, जो कि अपने लिए ऐड बनाती है या अपनी प्रोडक्ट के लिए ऐड बनाती है। और एड का पर्पस क्या होता है? टू परसुएट एंड इन्फॉर्म पोटेंशियल बायर्स। या तो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने पोटेंशियल बायर से, या आप उनको परसुएट करना चाह रहे हैं कि जी आप हमारी प्रोडक्ट को खरीदिए। सो दैट इज व्हाट एडवर्टाइजिंग इज। सेकंड अप इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज फेस टू फेस सेलिंग, 1-to-1 सेलिंग। जब आपके पास आकर कोई बंदा कहता है कि जी ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है फैसल बैंक का, आप ये प्लीज खरीद लीजिए और इसमें ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, दैट इज व्हाट पर्सनल सेलिंग इज, वेयर बाय इट इज पर्सन टू पर्सन सेल्स, 1-to-1 फेस टू फेस आप चीज को सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। द थर्ड टूल ऑफ प्रमोशन इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बेसिकली इज कि आप एक चीज खरीदते हैं और दूसरी चीज आपको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू 1 potato, 2 potato these days, what will happen is that they're going to give you a coupon saying कि next time you buy something you're going to get a 10% discount on it. So that is what sales promotion is. बहुत दफा ऐसा होता है कि जी आप कुकिंग ऑयल खरीदने जा रहे होते हैं और साथ ही आपको एक स्पंज फ्री में मिल जाता है। That is what sales promotion is, which is a one-time direct inducement. आप एक ही दफा एक रिबेट कूपन देकर या सब्सिडी देकर या 10% डिस्काउंट देकर आप वन टाइम अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो कि वो दोबारा आपकी शॉप पर आकर या दोबारा आपकी दुकान पर आकर चीज को खरीदें। एंड फाइनली यू हैव पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस इज ऑल एफर्ट्स डायरेक्टेड and building goodwill. So all the efforts that a company makes, all the efforts that an organization makes to increase its goodwill, to maintain its goodwill, and to build its goodwill is what we call as public relations. Now at this one time you need to distinguish between public relations and publicity. पब्लिक रिलेशन जो होता है वो कंपनी के कंट्रोल में होता है। कंपनी जो चीज़ चाहे उसको रिलीज करती है, जो इंफॉर्मेशन चाहे उसको मीडिया में देती है या जनरल पब्लिक को बताती है। ऑन द अदर हैंड, पब्लिसिटी इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल के जब हम बात करते हैं कि लेट्स से कि वी वेंट टू अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट टू हैव फूड, ना फास्ट फूड वाले जब ये बताते हैं कि जी हम ये हेल्थी चिकन यूज़ करते हैं और ये वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं और ये बर्गर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट पब्लिक रिलेशनिंग इज़, विच इज़ गुडविल क्रिएशन। ऑन द अदर हैंड, जब मैं जाकर वहाँ पर बर्गर खाती हूँ और मेरा जो बर्गर है उसके अंदर से लेट्स से हेयर कम्स आउट ऑफ इट एंड आई गो होम एंड आई टेल माई फ्रेंड्स कि यार मैं उस फास्ट फूड में गई थी और वहाँ तो बहुत गंद था और वहाँ तो मेरे खाने के अंदर से बाल निकला, इस केस में ये पब्लिसिटी है। Now publicity again is not controlled by the company. On the other hand, public relations is something which is controlled by the company. Now what I've done is I've just given you an example of how Unilever does its public relationing. ये दोनों जो चीज़ें आपको इस वक्त जो स्लाइड पर नजर आ रही हैं, both of them are available on Unilever's website. And if you go to Unilever's website, you just search events and news, and you will get all these things. And what Unilever is doing is it's just telling its stakeholders, it's just telling its customers कि Unilever क्या क्या काम environment के लिए, पाकिस्तान के लिए, जनरल पब्लिक के लिए कर रहा है. So Life by School program whereby they teach school children how to use soap and how to clean hands. That is what Unilever is doing for the country, for our country in general, right? And जब ये काम वो करता है then automatically goodwill जो है वो Unilever की increase हो जाती है. On the other hand, when Unilever pays 25 million to flood relief efforts, that is again something जो कि Unilever की goodwill को enhance कर रहा है, maintain कर रहा है और build कर रहा है. So these two are examples जो कि आपके public relationing में
आते हैं. The next thing that we're going to do is talk about a target market. अब तक हमने ये बात कर ली कि जी आपकी मार्केटिंग एनवायरनमेंट होती है, हमने आपको मार्केट को एक्सप्लेन कर लिया, मार्केटिंग को एक्सप्लेन कर दिया, हमने आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बेनिफिट्स, वैल्यूज़ की हमने आपसे बात कर ली. Now what we're going to do is we're going to talk about a target market. Now you need to understand कि जब कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं, लेट्स से अगर पाकिस्तान की 18 करोड़ की आबादी है, तो क्या मेरी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगी क्या वो सारी पॉपुलेशन को टारगेट करेगी? ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? मेरी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर नीड या एक पर्टिकुलर वांट को फुलफिल करती है और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करेगी या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वो प्रोडक्ट बनाई गई है जिनकी वो पर्टिकुलर नीड्स और वो पर्टिकुलर वांट्स हैं. दैट इज व्हाट अ टारगेट मार्केट इज, वेयर बाय यू नीड टू एग्जैक्टली स्पेसिफिकली डिफाइन कि कौन से कस्टमर्स हैं जिनकी नीड्स एंड वांट्स को आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट फुलफिल करती है. So that is what a target market is. A target market is a group with similar needs and wants that show interest in the same product. So they said कि जी target market में जब भी कोई भी कंपनी target market identify करती है, it is all about specifically identifying a group of people who have similar needs and who have similar wants, and those needs and wants can be met or can be fulfilled by one single particular product. अगेन जब आप टारगेट मार्केट की बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट पोजीशनिंग जो है वो बहुत मैटर करती है. प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होती है कि कस्टमर के माइंड में या कस्टमर की परसेप्शन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इमेज क्या है, ठीक हो क्या? सो व्हेन आई टॉक अबाउट लेट्स से नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स, I automatically think that it's a good quality fruit juice, it's going to be very nutritious, it's going to be very healthy and it's going to be without preservatives. Now मैंने अब तक बिल्कुल भी उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं पढ़े, सिर्फ मुझे पता था कि जी नेस्ले ने एक जूस का ब्रांड बनाया है जिसका नाम फ्रूटा वाइटल्स है. ना सिर्फ नेस्ले और फ्रूटा वाइटल्स का नाम सुनकर मेरे जहन में उस पर्टिकुलर जूस के ब्रांड के, उस पर्टिकुलर जूस के बारे में ये सारी चीज़ें हैं कि वो हेल्दी भी और न्यूट्रिशियस भी है. दैट इज़ व्हाट प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज, कि आप जब किसी प्रोडक्ट का नाम सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में एक इमेज आ जाता है और वो इमेज जो है वो बेसिकली उस प्रोडक्ट की पोजिशनिंग है. लेट्स से अगर आप कोक का नाम सुनते हैं तो आपको होता है कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड कोल्ड ड्रिंक, या अगर आप कहते हैं आप होंडा अकॉर्ड का नाम सुनते हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड कार जो कि आपको स्मूथ रनिंग देगी, जो कि एक आपका इमेज भी बढ़ाएगी. या अगर आप सना सफीनाज की बात करते हैं जो कि कपड़े बनाती हैं, डिजाइनर्स हैं, और एकदम से आपके जहन में आता है कि जी द क्लोथ्स दैट यू विल बाय फ्रॉम सना सफीनाज विल बी टोटली अप टू डेट क्लोथ्स और बिल्कुल फैशन वाले, अपडेटेड फैशन वाले होंगे. एंड आपको कभी मतलब कि आपका जो पर्सनालिटी है वो आपकी पर्सनालिटी को भी इनहांस करेंगे. सो प्रोडक्ट पोजीशनिंग बेसिकली इसके जब भी आप किसी प्रोडक्ट का नाम सुनते हैं या किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट के रेफरेंस से आपके जहन में क्या इमेज बनता है, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज. एंड जब आप टारगेट मार्केट सेट करते हैं या जब आप अपने स्पेसिफिक कंज्यूमर्स को या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पर आप प्रोडक्ट पोजीशनिंग भी कर रहे होते हैं. ना टारगेट मार्केट से पहले यू नीड टू डिवाइड मार्केट्स इनटू कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स, बिकॉज टारगेट मार्केट तो एक बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर्स हो गया, राइट? ना स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेट्स से कि पाकिस्तान में 18 करोड़ लोग रहते हैं, हाउ विल आई नो कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो कौन से लोग इस्तेमाल करेंगे? हाउ विल आई फिगर आउट किस किस्म के लोगों को मेरी प्रोडक्ट यूज करनी है? ना टारगेट मार्केटिंग से पहले, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने से पहले आप अपनी मार्केट को सेगमेंटेशन करते हैं या मार्केट को सेगमेंट करते हैं. सो अगर मेरी मार्केट, लेट्स से अगर मैं एक शूज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ एंड पार्टी शूज़ या ड्रेस शूज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ फीमेल्स के लिए, सो मेरी टारगेट मार्केट, मुझे अपनी टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने से पहले मुझे सेगमेंटेशन करनी है. सेगमेंटेशन का मतलब है कि मैंने अपनी पूरी मार्केट को जो कि 18 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, आई नीड टू डिवाइड it into categories, into segments, into smaller portions. So that is what segmentation is.
नाउ सेगमेंटेशन करने के लिए आप वेरियस वेरिएबल्स यूज करते हैं. देयर आर 5 डिफरेंट सेगमेंटेशन वेरिएबल्स व्हिच यू यूज टू डिवाइड योर मार्केट्स इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स. जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें एक चीज कॉमन होती है, दैट अ पर्टिकुलर सेगमेंट विल शेयर कॉमन ट्रेट्स दैट अफेक्ट परचेजिंग बिहेवियर. सो अगर मैं जब भी मैं सेगमेंटेशन करूंगी और जब मैं सेगमेंटेशन वेरिएबल्स यूज करूंगी अपनी मार्केट को डिवाइड करने में या अपनी मार्केट को सेगमेंट करने में, हर सेगमेंट के कुछ पर्टिकुलर ट्रेट होंगे जो कि उस सेगमेंट के रेफरेंस से कॉमन होंगे, या जितने भी उस सेगमेंट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब में वो ट्रेट्स मौजूद होंगे, और वो जो ट्रेट्स हैं वो परचेजिंग बिहेवियर को या परचेजिंग डिसीजन को भी अफेक्ट करेंगे. नाउ व्हाट आर योर वेरियस segments? First up you have geographic, then you have demographic, third up you have psychographic, and fourth up you have behavioral segmentation. So आप जब भी अपने मार्केट को डिवाइड करते हैं, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने से पहले आप सेगमेंटेशन जो करते हैं, सेगमेंटेशन वेरिएबल्स आपके ये 4 होंगे: geographic, demographic, psychographic and behavioral. Now what is geographic variable? Geographic variable basically is जब आप अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि आपका कस्टमर जो है वो कहाँ रिजाइड करता है, या आप अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन कि आपका कंज्यूमर कहाँ रहता है. लेट्स से कि जी अगर मैं शूज़, अगेन मेरी कंपनी शूज़ लॉन्च, पार्टी शूज़ लॉन्च करना चाहती है और मैं कहती हूँ कि आई एम गोइंग टू टारगेट पीपल हु लिव इन कराची. If I say that, what I'm doing is I'm doing a geographical सेगमेंटेशन, या मैं जोग्राफिकल वेरिएबल को यूज कर रही हूँ अपनी मार्केट को डिवाइड करने के लिए, बिकॉज आई एम सेइंग दैट आई एम जस्ट गोइंग टू टारगेट इंडिविजुअल्स हु लिव इन कराची ओनली. मैंने कराची जो कि एक जोग्राफिकल एरिया है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है. सो जोग्राफिकल वेरिएबल से जब भी आप सेगमेंटेशन करेंगे, व्हाट यू डू, यू डिवाइड योर मार्केट बेस्ड ऑन द फैक्ट एज टू वेयर योर कस्टमर्स लिव और रेजाइड. एंड देन अगेन आप कंट्रीज से, शहर से, नेबरहुड्स और नेबरहुड से लोकेलिटीज की बात करते हैं, और आप फाइन ट्यून करते जाते हैं अपनी सेगमेंटेशन वेरिएबल को. यू गोइंग टू से दैट आई एम गोइंग टू टारगेट पाकिस्तान में आई एम गोइंग टू टारगेट सिंध में आई एम गोइंग टू टारगेट कराची में आई एम गोइंग टू टारगेट डिफेंस. सो दैट इज व्हाट ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन इज. अगेन जोग्राफिकल सेगमेंटेशन इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज लेट्स से कि अगर मेरी बोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में या उन्हीं शहरों में, उन्हीं सिटीज़ में अपनी बोट्स डिलीवर करूँगी या अपनी बोट्स को मार्केट करूँगी जहाँ पर पानी होगा. लेट्स से कि अगर आई एम अ मैन्युफैक्चरर आई एम अ बोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या where can I target people, या मैं अपने कस्टमर्स कहाँ ढूंढ सकती हूँ? क्या मैं भावलपुर में अपने कस्टमर्स ढूंढ सकती हूँ? नहीं, मैं भावलपुर में नहीं ढूंढ सकती. क्या मैं मुल्तान में अपनी बोट्स को मार्केट कर सकती हूँ? नहीं, मैं मुल्तान में अपनी बोट्स को मार्केट नहीं कर सकती. मैं ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन करूंगी और अपनी बोट्स को कराची में मार्केट करूंगी बिकॉज वहाँ पर समंदर है, और मैं अपनी बोट्स को लेट्स से आई माइट मार्केट इट इन लाहौर बिकॉज वहाँ पर नहरें करीब हैं, और आई माइट मार्केट इट इन इस्लामाबाद बिकॉज यहाँ पर वेरियस डैम्स हैं और वेरियस लेक्स हैं जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स की मेरी ऑर्गेनाइजेशन है या मैं ये प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो उस केस में मैं ऐसी जगह पर ये 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स को मार्केट करूँगी जहाँ पर माउंटेन्स हों या रूरल एरियाज हों. सिमिलरली अगर मैं डिज़ाइनर क्लोथिंग प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी मार्केट को डिवाइड करूँगी बेस्ड ऑन जोग्राफिकल सेगमेंटेशन. और जोग्राफिकल सेगमेंटेशन में कैसे करूँगी कि जी मैं अर्बन एरियाज को मार्केट करूँगी या मैं अर्बन एरियाज को टारगेट करूँगी. और जब मैं अर्बन एरियाज कहती हूँ कि जी मैं सिर्फ अर्बन कराची में अपनी प्रोडक्ट को लेकर आऊँगी, दैट इज अगेन व्हाट वी कॉल एज ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन. सो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन बेसिकली इज जब आप एरिया स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक, नेबरहुड स्पेसिफिक, लोकेलिटी स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं, और यू डिवाइडिंग योर मार्केट बेस्ड ऑन वेयर योर कस्टमर्स एक्चुअली लिव. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन. ना जब भी हम ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन की बात करते हैं,
फॉर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आप जो हैं जोग्राफिकल सेगमेंटेशन कर सकते हैं, बट देन देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं, जिसमें आप जोग्राफिकल या ज्योग्राफी की बेस पर आप अपनी मार्केट को डिवाइड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल कोक, फॉर एग्जांपल पेप्सी, जितनी वो यूएसए में सेल हो रही है कोक, उससे ज़्यादा वो इंटरनेशनली सेल हो रही है. सो अगर हम कोक की बात करते हैं, कोक के रेफरेंस से कोक कभी भी जोग्राफिकल सेगमेंटेशन अपनी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. जोग्राफिकल सेगमेंटेशन सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए हो सकती है जहां पर एरिया स्पेसिफिक नीड्स एंड वांट्स हो या कंट्री स्पेसिफिक नीड्स एंड वांट्स हो. जब ऐसी नीड्स एंड वांट्स होती हैं जो कि एक एरिया स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक होती हैं, वहां पर आप जोग्राफिकल सेगमेंटेशन कर सकते हैं. Next up is demographic. Demographic is जब आप अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं based on age. KG, let's say that we're going to target individuals or youngsters between the age of 18 and 22. That is demographic segmentation. Yeah, income. That my product can be bought by people who have an income range of in between 50,000 and 100,000. Or you can do demographic segmentation based on gender. कि जी अगर मैं कहती हूँ कि जी मैं शूज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ या पार्टी शूज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, that my party shoes are basically targeted towards females, right? So that is what gender segmentation is. A demographic segmentation आप use करें based on gender. Then you have ethnic background. Then you have marital status. Then you have race, religion and social class. So ये जो आपके पास 8 different types हैं, जब आप demographic segmentation करते हैं, you can use a combination of these or maybe one or two. For example, अगर मैं party shoes कर रही हूँ तो I can say that I'm going to target females between the age of 18 and 35, having an income range of rupees 75,000 to 150,000. Now when I've done this segmentation, what I'm doing is I'm using a demographic segmentation variable, and I'm using age, I'm using income, and I'm using gender as a tool to divide my market, to segment my market. Next up is psychographic variables. Psychographic variables are when you're dividing your market or when you're segmenting your market based on lifestyles, based on interest, based on attitudes. These are the 3 basic ways through which you can change or divide or segment your market. Now, for example, अगर हम बात करते हैं Gen 1 stores की, right? What they're doing is they're using psychographic variables because everybody cannot afford to go and buy things in Gen 1, right? So when that happens, a particular individual जिनका एक particular lifestyle होता है, वो ही जाकर Gen 1 से shopping करते हैं. जिनका interest उसी किस्म की चीज़ों में होता है, वही Gen 1 से जाकर करते हैं. या जिनका एक particular attitude होता है, they're the type जिनका attitude ये होता है कि जी we want to have the best of the best at our place. We want to have ऐसी चीज़ जो कि सब लोग उसको देखे होंगे कि जी वाह जी कितनी अच्छी चीज़ है आपकी. So that is what psychographic variables are. कि जी आप अपने lifestyle की बेस पर आपका एक अगर आप एक ऐसा lifestyle है जहाँ पर आप बहुत सारी पार्टीज अरेंज कर रहे हैं और बहुत हाई लेवल इंडिविजुअल से मिल रहे हैं, तो आप अपने घर में हर चीज़ ऐसी रखेंगे कि जी सबसे अच्छी हो. फॉर एग्जाम्पल के जी अगर हम कहते हैं कि सातकैन की पिक्चर्स की हम बात करें, पेंटिंग्स की हम बात करें, तो उसमें भी आप अगर आप सात की पेंटिंग्स की बात करें, हम मार्केट को डिवाइड करना चाहेंगे किस किस्म के लोग सातकैन की पेंटिंग्स खरीदेंगे, उसमें भी साइकोग्राफिक वेरिएबल से आप अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन यूज कर सकते हैं. बिकॉज पीपल हैविंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, पीपल हैविंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटीट्यूड विल बी द वंस हु विल और कैन अफोर्ड सातकैन्स पेंटिंग्स, बिकॉज हर किसी को ना वो समझ में आती हैं ना वो अफोर्ड कर सकते हैं. सो एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के लोगों को ही सातकैन की पेंटिंग्स पसंद है. अनदर एग्जांपल इज लेट्स से मर्सिडीज को की अगर हमें मार्केट सेगमेंटेशन करनी हो तो मर्सिडीज की मार्केट सेगमेंट करने के लिए हम साइकोग्राफिक वेरिएबल्स यूज करेंगे, बिकॉज पर्टिकुलर पीपल हैविंग अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल आर द वंस जो कि मर्सिडीज के कस्टमर्स होते हैं या मर्सिडीज खरीद सकते हैं. नाउ अगेन साइकोग्राफिक वेरिएबल में एक चीज़ ये होती है कि आप ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि मार्केटिंग एफर्ट से चेंज हो सकता है. लेट्स से कि आज से
10-15 साल पहले अगर हम गुल अहमद की बात करते हैं तो गुल अहमद जो था वो एक ऐसा ब्रांड था जो कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन यूज़ कर सकता था, बिकॉज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल कुड बाय गुल अहमद्स प्रोडक्ट्स या गुल अहमद्स लॉन या उनके कपड़े, बिकॉज दे वर वेरी हाईली प्राइस्ड, दे वर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, everybody could not afford to buy Gul Ahmad, so a particular class having a particular lifestyle could afford that. On the other hand, जब गुल अहमद ने अपनी आइडियाज़ की शॉप्स बनाई एंड उन्होंने अपने आप को एक्सटेंसिवली मार्केट करना शुरू किया, what they did through their marketing was that the image के जी एक्सक्लूसिव ब्रांड है जो कि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के लोगों के लिए है, वो ख़त्म हो गया. Now everybody, even the middle class people, could now go to an ideas outlet and shop from there, shop bed linens from there, shop pillows from there, shop clothes from there, shop anything that they liked from there. So what happens with the psychographic segmentation is कि जब आप psychographic segmentation use करते हैं तो marketing के effort के through आप individuals के जहन में आप चेंजेस ला सकते हैं. और जहन में क्या चेंजेस ला सकते हैं? ये चेंजेस ला सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है आपके लिए भी है, ये सिर्फ हाई क्लास लोगों के लिए नहीं है, ये एक मिडिल क्लास इंडिविजुअल के लिए भी अवेलेबल है, अफोर्डेबल है और उसके लिए भी बनाया गया है. सो दैट इज व्हाट योर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज. लास्टली यू हैव बिहेवियरल वेरिएबल और बिहेवियरल सेगमेंटेशन. इट इज बेसिकली ways and means in which a product is used, या उससे क्या बेनिफिट इंडिविजुअल एक्सपेक्ट क्या करता है, या जब एक प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसका यूजेज क्या है, या क्या रीज़न है कि हम उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं. या अगेन जब आप बिहेवियरल सेगमेंटेशन की बात करेंगे, आप प्राइमरी अपना जो फोकस रखते हैं वो ये रखते हैं कि जी इंडिविजुअल जूते क्यों ख़रीद रहा है या इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों ख़रीद रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम मैन्युफैक्चरिंग शूज़, इफ़ आई एम प्रोड्यूसिंग शूज़ फॉर रनिंग के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव फ़र्क होगा. मेरी बिहेवियरल सेगमेंटेशन ये होगी कि जी उसकी ट्रैक्शन बेहतर हो, वो कंफर्टेबल हो. इफ़ आई एम प्रोड्यूसिंग कैजुअल शूज़, उसमें मेरी बिहेवियरल सेगमेंटेशन ये होगी कि जी आई एम प्रोड्यूसिंग फॉर दोज पीपल हु वांट कंफर्ट, हु वांट शूज़ जो कि उनको ज़्यादा अरसे तक चलें. एंड देन इफ आई गो फॉर ड्रेस शूज़, तो वहाँ मेरी बिहेवियरल सेगमेंटेशन ये होगी कि आई एम टारगेटिंग दोज पीपल जिनको कलर स्पेसिफिक शूज़ चाहिए या जिनको उसमें शायद कंफर्ट इतनी मैटर ना करे, बिकॉज उसमें हील, अगर फीमेल्स के शूज़ हैं तो उसमें हील होगी और हील जो होगी वो यूजुअली ड्रेस शूज़ में ज़्यादा होती है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका यूज़ क्या है या आप क्या बेनिफिट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप बिहेवियर सेगमेंटेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम बाइंग अ थर्मस, तो थर्मस का में बिहेवियर सेगमेंटेशन हो सकते हैं, बिकॉज थर्मस का जो मैं बेनिफिट एक्सपेक्ट करेंगे वो पानी को ठंडा रखेगा. ठीक हो क्या? सो अगर मैं इस लिहाज से अपनी मार्केट को डिवाइड करती हूँ तो आई एम टारगेटिंग दोज पीपल दैट, या आई एम मेकिंग द प्रोडक्ट फॉर दोज पीपल जिनको ठंडा पानी हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए, तो वो बिहेवियरल सेगमेंटेशन होगी. So these are again 4 different ways through which you can divide your market, through which you can segment your market. सबसे पहले geographical segmentation, उसके बाद demographic segmentation, उसके बाद psychographic segmentation, and lastly behavioral segmentation. Now you need to understand at this point in time is कि जब भी हम segmentation करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एक variable use करें, कि अगर हमने demographic use किया तो सिर्फ demographic ही होगा और कोई नहीं होगा, या अगर हमने बिहेवियरल सेगमेंटेशन कर लिया तो हम सिर्फ बिहेवियरल सेगमेंटेशन कर सकते हैं और यूज नहीं कर सकते. अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट कंपनीज डू इज दे यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेगमेंटेशन वेरिएबल. ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन भी होगी, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन भी होगी और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन भी होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोबिलिंक और टेलेनॉर या किसी भी मोबाइल कंपनी की एग्जाम्पल है, व्हाट दे डू इज ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन वो लोग करते हैं बेस्ड ऑन वेयर द कस्टमर इज रिजाइडिंग. पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है या KPK में है. देन दे डू डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एज वेल. उनके वेरियस पैकेजेस आर टारगेटेड टुवर्ड्स वेरियस एजेस. उनका जो मोबिलिंक का जो कुछ पैकेजेस हैं जो सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करते हैं, कुछ ऐसे SMS पैकेजेस हैं जो सिर्फ यंगस्टर्स को टारगेट करते हैं. देन यू हैव साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन फॉर मोबिलिंक एज वेल, बिकॉज जो उनका इंडिगो का पैकेज है वो एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के लोगों के लिए टारगेट कर रहा है. जो उनका जाज का पैकेज है वो एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के लोगों को टारगेट कर रहा है. सो अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट कंपनीज डू इज दे यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ these segmentation variables to divide their markets, to segment their market.
अगेन मार्केट सेगमेंटेशन क्यों की जाती है? जब आप मार्केट को स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड कर दोगे, फिर आप अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करते हो। उन्हीं स्मॉलर पोर्शंस में से आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो कौन से स्पेसिफिक लोग हैं जिनकी सिमिलर नीड्स एंड सिमिलर वांट्स हैं, जो कि आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उससे सेटिस्फाई हो जाएंगी। सो दैट इज व्हाट योर सेगमेंटेशन इज, एंड दैट इज द लिंक बिटवीन सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केट. You do segmentation first, and then you go ahead and find out what your target market is. Now, next thing that we're going to do is talk about market research. Market research is basically understanding or studying what your consumer needs and wants. Again, important क्यों है market research? Market research becomes the basis of all your marketing decisions. From the time जब हमने marketing define किया, हमने कहा कि जी it is all about planning and implementing ways and means whereby you're using your 4 Ps to deliver products to your customers so that your objectives can be met. Now, जब हम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वो डिलीवरी हम क्यों कर रहे थे? ताकि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो जाए. कस्टमर सिर्फ तब प्रोडक्ट खरीदता है या इसलिए पैसे खर्च करता है जब उसकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हों. नीड्स एंड वांट्स का हम पता कैसे चलाते हैं? ये कैसे हमें पता चलेगा? ये थोड़ी होता है कि जी आप एक बंदे के सामने बैठ गए और उसको देखे जा रहे हैं कि जी इसकी नीड एंड वांट्स क्या हैं. ऐसे तो कभी भी नहीं पता चलता. There's a scientific process through which you follow, and at the end of that process you get to know कि जी कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या डिज़ायर करता है, कस्टमर की क्या नीड्स है. This particular process is called as your marketing research process. So basically अगर हम define करें marketing research को, marketing research basically is कि आप किस तरीके से अपनी कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को जानते हैं और पहचानते हैं. Now just to further clarify the concept of marketing research, we have this figure in front of you. This particular figure, if you can't see it very clearly, it's very much available in your books as well. If you would open your chapter number 10, the very same figure is there in your chapter. Now what you do is market research becomes a center of everything, whereby आप market research के through अपने customer की needs and wants को identify करते हैं. जब मार्केट रिसर्च आप करते हैं तो आप अपने स्टेक होल्डर्स से इनपुट लेते हैं. स्टेक होल्डर्स में आपके कंज्यूमर्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके इन्वेस्टर्स, आपके सप्लायर्स, आपकी लोकल कम्युनिटी सारी आ जाती हैं. यू इंटरैक्ट विद योर स्टेक होल्डर्स, यू टॉक टू योर स्टेक होल्डर्स, यू फाइंड आउट व्हाट योर स्टेक होल्डर्स नीड एंड व्हाट योर स्टेक होल्डर्स वांट. देन यू ऑल्सो कंसिडर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल. आप इकोनॉमिक एनवायरमेंट, आप टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, आप कंपेटिटिव एनवायरमेंट, आप पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट, आप सोशल कल्चरल एनवायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं जब आप मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं. बिकॉज जो आपकी स्टेक होल्डर्स की नीड्स एंड वांट्स हैं वो ऑटोमेटिकली विल बी डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. आपकी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है, आपके स्टेक होल्डर्स की नीड्स एंड वांट्स चेंज हो जाएंगी. आपकी इकोनॉमी बूम के स्टेज में है, आपके कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स, आपके स्टेक होल्डर्स की नीड्स एंड वांट्स चेंज हो जाएंगी. देन यू हैव योर 4 Ps एज वेल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्लेस. उसका काम वो भी मार्केट रिसर्च में आती है. बिकॉज आप मार्केट रिसर्च जो कर रहे होते हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के बारे में ही कर रहे होते हैं. किस किस्म की प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, किस प्राइस पर उस कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, किस तरीके से कस्टमर प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, रिटेलर से खरीदना चाहेगा, मैन्युफैक्चरर से खरीदना चाहेगा, प्रोड्यूसर से खरीदना चाहेगा या इंटरनेट पर खरीदना चाहेगा. एंड देन आप कौन सा प्रमोशन मीडियम यूज करेंगे, आप एडवर्टाइजिंग यूज करेंगे, आप सेल्स प्रमोशन यूज करेंगे, आप पर्सनल सेलिंग यूज करेंगे या आप पब्लिक रिलेशनिंग यूज करेंगे. जब आप इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, देन व्हाट यू डू इज फर्स्ट थिंग यू असेस इंफॉर्मेशन. यू सी के जी आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिली है. देन यू आफ्टर असेसिंग द इंफॉर्मेशन देन यू सी एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन. एनालाइज के बाद आप देखते हो कि इंफॉर्मेशन कैसे है, किस फॉर्म में है, कैसे हमें हेल्प आउट कर सकती है. एंड फाइनली यू मेक अ डिसीजन. जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप मार्केटिंग डिसीजंस बनाते हैं. मार्केटिंग डिसीजंस आपके कैसे होते हैं कि आपकी मार्केट सेगमेंटेशन कैसे होगी, आप कौन सा सेगमेंटेशन वेरिएबल यूज़ करेंगे अपने मार्केट को डिवाइड करने के लिए. आपकी टारगेट मार्केट सिलेक्शन क्या होगी. जब आपने सेगमेंटेशन कर ली तो बेस्ड ऑन योर सेगमेंटेशन आप अपनी टारगेट मार्केट को कैसे सिलेक्ट करेंगे. आपकी जो मार्केटिंग प्लान है वो कैसे बनेगा, आपके 4 Ps क्या होंगे, प्राइस क्या होगी, प्रमोशन क्या होगी, प्लेसमेंट क्या होगी. और फाइनली ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मार्केटिंग प्लान जो हो गया, आपके 4 Ps, मार्केटिंग मिक्स जो हो गया आपका, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, आपके स्टेक
होल्डर्स हो गए, सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट हो गई, ये सब चीज़ें आपने जो अपने लिए गोल सेट किए हैं, जो अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं, वो सारे कैसे अचीव होते हैं बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो कि आपको मार्केटिंग रिसर्च ने प्रोवाइड की है. Now what we're going to do is that we're now going to tell you the entire research process. हमने आपको generally बता दिया कि marketing research क्या होती है, और हमने आपको generally एक figure के through बता दिया कि marketing research से आपको क्या फ़ायदा होता है या आप किस किस्म के decisions ले सकते हैं. But now what we're going to tell you is that there is a whole research process. जो marketing research का process है वो एक step by step process है. First आप situation को study करते हैं. Second, you select a method जिसके through आपने marketing research करनी है. Next, you collect data. Fourth, you analyze data, and finally you prepare a report. Now the very first thing was study the current situation. Now study the current situation का मतलब ये है कि what you need to find out is कि need क्या है and हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि वो नीड फुलफिल हो जाए. सो जब भी आप मार्केटिंग रिसर्च के फर्स्ट स्टेप में जो आप सिचुएशन स्टडी करेंगे, उसमें आपका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपने देखना होता है कि इंडिविजुअल्स की कौन सी ऐसी नीड है जो कि अनफुलफिल्ड है, या कौन सी ऐसी नीड है जो कि कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो रही है. आप उस नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप ये मालूम करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि उस नीड को फुलफिल कर रही है, और अगर कर रही है तो किस एक्सटेंट तक उस नीड को फुलफिल कर रही है. जब आपने सिचुएशन आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता चल गया कि जो ये नीड है और ये नीड जो है ये फुलफिल नहीं हो रही है, तो आप अपने रिसर्च मेथड्स के बारे में सोचते हो. तो आप रिसर्च मेथड्स की बात करोगे तो आप ये सोचोगे कि जी मैं किस तरीके से अपनी रिसर्च को कंडक्ट करूं, मैं सर्विस करूं, मैं एक्सपेरिमेंटेशन करूं, मैं ऑब्जर्वेशन करूं, मैं क्या करूं. देन यू गो फॉर, जब आपने अपना रिसर्च मेथड आइडेंटिफाई कर लिया कि जी मैं तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपना रिसर्च करूंगा. ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि मैं सिर्फ लोगों को स्टडी करूंगा, ना बात करूंगा ना मिलूंगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा लोगों को वो क्या कर रहे हैं. उसके बाद आप डेटा कलेक्शन करते हैं. डेटा कलेक्शन में आपके प्राइमरी डेटा सोर्स भी होता है और सेकेंडरी डेटा सोर्स भी होता है. प्राइमरी डेटा सोर्सेज आर दो सोर्सेज जो कि ऐसा डेटा जो कि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो. अगर फॉर एग्जांपल आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू में आप उससे पूछ रहे हो कि जो आपकी कौन सी नीड्स है जो कि फुलफिल नहीं हो रही हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ये प्रोडक्ट आपकी नीड को क्यों नहीं फुलफिल कर रही, ये आपका प्राइमरी डेटा है. ऐसा डेटा जो कि आप खुद इंडिविजुअली कलेक्ट कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है, जो कि पब्लिश डेटा होता है, इंटरनेट पर पब्लिश्ड होगा, किसी रिसर्च जर्नल में पब्लिश्ड होगा, किसी बुक में पब्लिश्ड होगा, और आप उस डेटा को यूज करें. सो प्राइमरी डेटा इज डेटा कलेक्टेड बाय यू एंड सेकेंडरी डेटा इज डेटा कलेक्टेड बाय समबडी एल्स व्हिच यू आर यूजिंग, राइट. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. एंड डेटा कलेक्शन में आप डेटा कलेक्ट करते हो यूजिंग प्राइमरी सोर्सेज एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज. जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हैं, आप उस पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाते हैं, आप उस पर रिग्रेशन लगाएंगे, उस पर प्रोबेबिलिटी लगाएंगे टू सी के भी डेटा जो कलेक्ट हुआ है उसका ट्रेंड क्या है, ताकि उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाए. एंड फाइनली जब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो आप एक पूरी रिपोर्ट बनाते हैं कि जी हमारी मार्केटिंग रिसर्च से ये पता चला कि पाकिस्तान में जो फ्रूट जूसेस की मार्केट है वो उसमें अभी भी सर्टेन नीड्स विच आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड. इंडिविजुअल्स को फालसे का शरबत नहीं मिलता है, उनको बाकी सारे शरबत मिल जाते हैं, उनको गुआवा का मिलता है, मैंगो का मिलता है, ऑरेंज का मिलता है, पाइनएप्पल का मिलता है, लेकिन फालसे का नहीं मिलता. सो मार्केट रिसर्च से ये पता चला है कि मार्केट में अभी फालसे के जूस की डिमांड है और कस्टमर्स चाहते हैं कि उनको फालसे का जूस मिले. सो दैट इज व्हाट योर मार्केट रिसर्च प्रोसेस इज. अभी हमने पहले रिसर्च मेथड्स की बात की थी. रिसर्च मेथड्स बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. यू हैव ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इज वेयर बाय यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट टॉकिंग टू पीपल, यू आर नॉट इंटरव्यूइंग पीपल, यू जस्ट सिटिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड ऑब्जर्विंग पीपल कि लोग किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ खरीद रहे हैं, दुकानदार से क्या मांग रहे हैं और क्या डिमांड कर रहे हैं. दैट इज व्हाट ऑब्जर्वेशन इज. देन यू हैव सर्विस. सर्विस कंडक्ट करने के वेरियस तरीके होते हैं. एक तरीका इंटरव्यू के थ्रू होता है कि आप 1-to-1 फेस टू फेस उनसे क्वेश्चंस पूछें, इंटरव्यू कंडक्ट करें और डेटा को मतलब कि डेटा कलेक्ट करें. सेकंड इज क्वेश्चनर. क्वेश्चनर इज अ पीस ऑफ पेपर जिसमें आप क्वेश्चंस लिखते हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं. वो पेपर आप इंडिविजुअल को दे देते हैं, वो पेपर इंडिविजुअल फिल करता है, अपने ऑप्शंस बताता है और आपके पास इंफॉर्मेशन आती है. देन यू हैव फोकस ग्रुप. फोकस ग्रुप बेसिकली इज वेयर बाय ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड सिट
इस ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज एक मॉडरेटर करता है। एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को एक टॉप मॉडरेट, उसको हम मॉडरेटर कहते हैं। मॉडरेटर क्या करता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देता है और कहता है कि जी आप इसके बारे में डिस्कशन करें और बात करें। वो ग्रुप जो है वो आपस में इसके बारे में डिस्कशन करता रहता है और जो मॉडरेटर है वो ग्रुप के जो डिस्कशन हो रहा होता है उसके बारे में नोट्स लिख रहा होता है कि ग्रुप क्या कह रहा है, उनकी लाइक्स क्या हैं, उनकी डिसलाइक्स क्या हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो किस किस्म की प्रोडक्ट चाहते हैं यूज़ करना या किस किस्म का शरबत चाहते हैं पीना या खरीदना। सो दैट इज व्हाट अ मॉडरेटर इज एंड दैट इज व्हाट अ फोकस ग्रुप इज। फोकस ग्रुप में मॉडरेटर का रोल ये होता है कि एक तो वो उस डिस्कशन को फोकस्ड रखता है। भाई अगर हम फ्रूट जूसेस पर डिस्कशन करें तो सिर्फ फ्रूट जूसेस पर ही डिस्कशन हो, कोल्ड ड्रिंक्स पर डिस्कशन ना चला जाए या आइसक्रीम्स पर डिस्कशन ना चला जाए। द मॉडरेटर बेसिकली फोकसेस द ग्रुप ऑन दैट सिंगल टॉपिक दैट इज अंडर डिस्कशन एंड द अदर थिंग दैट द मॉडरेटर डज इज कि वो बैठकर साइड पर जो डिस्कशन हो रही होती है उसके पॉइंट्स लिख रहा होता है या उसकी समरीज भी बना रहा होता है। फाइनली यू हैव एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली इज कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आप डिफरेंट सर्कमस्टांसेस देते हो एक्सपीरियंस करने को। फॉर एग्जांपल आपने फालसे का शरबत बनाया 4 डिफरेंट किस्म का, एक में विद सॉल्ट है, दूसरा विदाउट सॉल्ट है, तीसरा विद लॉट्स ऑफ शुगर है, चौथा विद लिटिल बिट ऑफ शुगर है। और आपका जो ग्रुप ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है आपका या जिस ग्रुप पर आप अपनी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, आप हर इंडिविजुअल को चारों जूसेस प्रोवाइड करते हो, हाई सॉल्ट, लो सॉल्ट, हाई शुगर एंड लो शुगर। एंड उस चारों जूसेस पीता है, फिर बताता है कि कौन सा जूस किस जूस का सबसे अच्छा टेस्ट है। So that is what experimentation is कि आप एक इंडिविजुअल को डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से गुजारते हो, एक इंडिविजुअल को डिफरेंट टेस्ट का या डिफरेंट फ्लेवर का जूस देते हो सो दैट वो आपको बताए कि सबसे अच्छा फ्लेवर का जूस जो है वो कौन सा है। सो दीज आर बेसिकली योर रिसर्च मेथड्स और ये रिसर्च मेथड्स जो हैं ये बेसिकली आपके रिसर्च मेथड में आते हैं जो रिसर्च प्रोसेस का सेकेंड स्टेप है। सबसे पहले आपने सिचुएशन स्टडी की, दूसरे स्टेप में आपने रिसर्च मेथड अडॉप्ट किया, चाहे वो एक्सपेरिमेंटेशन हो, फोकस ग्रुप हो, सर्विस हो या ऑब्जर्वेशन हो। फिर आपने डेटा कलेक्ट किया, चाहे प्राइमरी सोर्सेज से करें या सेकेंडरी सोर्सेज से करें, फिर एनालाइज किया डेटा को और फाइनली आपने रिपोर्ट दे दी। सो दैट बिकम्स योर इंटायर रिसर्च प्रोसेस। ना जब आप रिसर्च कर लेते हैं तो again what you're trying to do through research is getting to finding out what your customer needs and what your customer wants। और जब आप कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स की बात करेंगे तो आप कंज्यूमर बिहेवियर की भी बात करेंगे। कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, उसके जहन में या उसके बिहेवियर में ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो एक प्रोडक्ट उठाता है और दूसरी प्रोडक्ट नहीं उठाता, वो कोक पीता है और पेप्सी वापस रख देता है। सो दैट इज व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर इज, स्टडी ऑफ द डिसीजन प्रोसेस बाय विच पीपल बाय एंड कंज्यूम प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली इज कि किस तरीके से कस्टमर जो है और कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को खरीदता है और उसको यूज करता है, या ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके थ्रू एक कस्टमर एक किस्म की प्रोडक्ट खरीदता है और दूसरी किस्म की प्रोडक्ट को नहीं खरीदता। ना कंज्यूमर बिहेवियर को वेरियस चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। 4 things. First up are your psychological influences. Psychological influences are motivation, perception and attitudes. राइट। सो जो लोग मर्सिडीज खरीदते हैं उनको उन पर बेसिकली क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है? साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। उनका एक एटीट्यूड होता है, उनका एक परसेप्शन होती है कि जी मर्सिडीज जब मैं खरीदूंगा सो एवरीबडी इज गोइंग टू लुक एट माई कार, इज गोइंग टू से वाह यार ही मस्ट बी अ रियली रिच गाय जो इसने मर्सिडीज खरीदी है। सो दैट इज व्हाट साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस आर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट इज योर पर्सनल इन्फ्लुएंसेस। पर्सनल इन्फ्लुएंसेस आर लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेटस। कि जी आप अगर हम बात करते हैं कि जी कोई बंदा जो है वो लेट्स से सुजुकी मेहरान खरीदता है तो आपको पता चल जाता है कि जी उसके इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। सिमिलरली जो बंदा मर्सिडीज या BMW खरीदता है आपको ऑटोमेटिकली थ्रू दिस पर्सनल इन्फ्लुएंस आपको पता चल जाता है कि वो क्यों BMW खरीदता है, बिकॉज उसका इकोनॉमिक स्टेटस इतना है या उसकी जो सैलरी है या जो उसकी इनकम है वो इतनी है कि वो BMW खरीद सके और मेहरान ना खरीदे। सो दैट इज व्हाट योर पर्सनल इन्फ्लुएंसेस आर। नेक्स्ट अप आर योर सोशल इन्फ्लुएंसेस। सोशल इन्फ्लुएंसेस आर फैमिली। बहुत दफ़ा मैंने एक चीज़ खरीदी, मैंने अपनी
बहन को बताई, मेरी बहन भी जाकर वही चीज़ खरीदती है। मेरे फ्रेंड ने एक चीज़ यूज़ की, उसको बहुत पसंद आई, उसने मुझे बताया कि जी फलानी दुकान में जाना, वहाँ से बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, आई गो एंड आई बाय इट फ्रॉम देयर। सिमिलरली ओपिनियन लीडर्स वो लोग होते हैं जो कि ऐसे लोग जो कि अपना ओपिनियन देते हैं और बाकी सारे लोग उस ओपिनियन को फॉलो करते हैं। So when somebody says कि जी आइडिया से बहुत अच्छी सेल लगी है, so that means कि I'm going to take that person जो कि opinion leader है, I'm going to take that person's word and I'm going to go to ideas outlet and I'm going to go shopping there. Lastly you have your cultural influences. Now cultural की जब आप बात करते हैं तो उसमें आप culture की भी बात करेंगे, सब culture की भी बात करेंगे और social class की भी बात करेंगे। Culture is basically a way of living जिसकी वजह से आपके various groups जो हैं वो एक दूसरे से differentiate हो सकते हैं। For example पंजाबी, बलोचीज, सिंधीज एंड पख्तून्स, राइट? ये सारे कल्चर्स हैं आपके। पख्तून्स हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल एज कम्पेयर्ड टू पंजाबीज। पंजाबीज ऑन द अदर हैंड हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लिविंग एज कम्पेयर्ड टू सिंधीज। नाउ इन कल्चर्स के अंदर आपके सब कल्चर्स भी आते हैं। पंजाबीज के अंदर उनकी वेरियस कास्ट होती हैं, सिमिलरली सिंधीज के अंदर उनकी और बहुत सारी कास्ट होती हैं। बलूचिस्तान में जाएँ तो उनके और बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं और ट्राइब्स के लिहाज से उनकी जो ट्रेडिशंस है या जो उनकी वे ऑफ लिविंग है वो फ़र्क होती है। सो दैट is what we call as a subculture. And finally you have social class. Social class is के आपकी occupation की बेस पर या आपकी इनकम की बेस पर जो आपकी social ranking होती है, अगर हम कहते हैं जी lower class या lower middle class या upper middle class या upper class, ये आपकी social class है। और अगेन जो आपकी फॉर एग्जाम्पल आप मिडिल क्लास की बात करते हो तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर इनकम लेवल आता है और ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन आती है, ठीक हो गया? सो दैट इज व्हाट योर सोशल क्लास इज। नाउ ये जो चारों आपके इन्फ्लुएंसेस हैं, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, पर्सनल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये चारों इन्फ्लुएंस किसी भी कंज्यूमर के परचेज पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं, या ये चारों इन्फ्लुएंसेस जो हैं जब कंज्यूमर जो है वो चीज़ ख़रीदता है उसको इस्तेमाल करने के लिए या किसी चीज़ को परचेज़ करता है, उसके परचेज डिसीजन में ये साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी होंगे, उसके पर्सनल इन्फ्लुएंसेस भी होंगे, उसके सोशल इन्फ्लुएंसेस भी होंगे और उसके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी होंगे। सो अगर एक बंदा जो है वो सिंधी टोपी ख़रीदता है उसमें उसके कल्चरल इन्फ्लुएंस आएगा और उसका शायद पर्सनल इन्फ्लुएंसेस भी आए और उसका साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी आए। सिमिलरली अगर आप जाकर एक अजरक खरीदते हैं सिंध में जाकर, उसमें भी आपके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी आएंगे, उसमें आपका सब कल्चर भी आएगा, फिर उसमें आपके साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी आएंगे और पर्सनल इन्फ्लुएंसेस भी आएंगे। सो दैट इज व्हाट और दैट इज हाउ दीज इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट परचेज डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स और दिस इज हाउ दीज इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। Now next up is what we're going to do is कि जब भी हम मुस्तकिल हम बात करेंगे जी इंडिविजुअल्स या कस्टमर्स का एक परचेज पैटर्न होता है, नीड्स एंड वांट्स होती हैं, उस नीड्स एंड वांट्स को कंपनीज जो हैं वो फुलफिल करने की कोशिश करती हैं और फुलफिल कैसे करती हैं? एक प्रोडक्ट के थ्रू जिसमें फीचर्स भी होते हैं और बेनिफिट्स भी होते हैं। Now ये जो चीज़ है ये बेसिकली आपका buying process होता है। Now your buying process basically is how your individuals or how your customers buy a particular product. Now buying process basically is a 5-step process. First up is प्रॉब्लम और नीड रिकग्निशन। सबसे पहले बाइंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है उसमें एक पर्टिकुलर नीड होती है जिसको आपको फुलफिल करना होता है और उसको फुलफिल करने के लिए आप बाइंग प्रोसेस को इनिशिएट करते हो। नेक्स्ट इज कि जी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जी योर नीड इज दैट यू नीड टू रिप्लेस योर ओल्ड शूज, आपके जूते बहुत पुराने हो गए, यू नीड टू चेंज देम। जब आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली देन यू सीक इन्फॉर्मेशन, आप ढूंढना शुरू करते हो, डिफरेंट स्टोर्स में जाते हो, डिफरेंट स्टाइल्स देखते हो, प्राइस का कंपैरिजन करते हो, पूछते हो लोगों से कि कौन सा जूता अच्छा है, कौन सा जूता अच्छा नहीं है। उसके बाद आप इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स करते हो, आपके पास 4-5 डिफरेंट शूज़ आ गए, आप उसको एवेलुएट करते हो। एवेलुएट किस बेसिस पर करते हो कि कौन सा कंफर्टेबल है, कौन सा कंफर्टेबल नहीं है, किसकी प्राइस कम है, किसकी प्राइस कम नहीं है, कौन सा अफोर्डेबल है, कौन सा आपके बजट में आता है या नहीं आता। नाउ व्हेन यू आर एवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स, इसमें आपके
जो हमने कंज्यूमर बिहेवियर की बात की, वहाँ पर आपके कंज्यूमर बिहेवियर के जो फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस आएंगे आपके साइकोलॉजिकल, आपके पर्सनल, आपके सोशल और आपके कल्चरल। ये आपकी चॉइस को, एवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स को अफेक्ट करेंगे। सिमिलरली आपकी प्रोडक्ट या आपके जो मार्केटिंग मिक्स है वो भी अफेक्ट करेगा, प्राइस भी अफेक्ट करेगी, आपका किस जगह पर आपको वो चीज़ अवेलेबल है वो भी अफेक्ट करेगी, प्रोडक्ट के अपने फीचर्स क्या हैं, क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं है, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं होगा, उस जूते का सोल कैसा है या अच्छा सोल है या नहीं है, वो आपके एवैल्यूएशन को अफेक्ट करेगा। जब आपने अपनी एवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कर ली, देन यू मेक अ परचेज डिसीजन। आप डिसाइड करते हो कि मैं ये जूता खरीदूंगा। जब आप परचेज डिसीजन कर रहे होते हो तो इट इज अ रैशनल डिसीजन एज वेल एज एन इमोशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन जब होगा जब आप रैशनली या लॉजिकली किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करोगे, इसकी प्राइस कम है इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, इसकी क्वालिटी ज़्यादा है इसलिए मैं ये ख़रीद रहा हूँ, ये जो है जूता इसका सोल बहुत अच्छा सोल है इसलिए मैं ख़रीद रहा हूँ। दीज आर ऑल लॉजिकल रीजन्स टू बाय अ शू। ऑन द अदर हैंड इमोशनल डिसीजन ये होता है, मेरे दोस्त के पास यही जूता था इसलिए मैं ये खरीद रहा हूँ, मुझको ये कलर बहुत पसंद है मैं यही खरीदूंगा। भाई कलर तो पसंद है लेकिन उसकी कॉस्ट तो 5,000 रुपए है, डजंट मेक सेंस कि हम 5,000 का जूता खरीदें, लेकिन आप फिर भी खरीद तो जस्ट बिकॉज यू लाइक ए कलर। सिमिलरली आपके दोस्त के पास है इसलिए हम ये जूता खरीद रहे हैं। अगेन इट्स एन इलॉजिकल इमोशनल डिसीजन दैट यू आर मेकिंग। नाउ वंस यू मेड द परचेज डिसीजन, फाइनली यू डू पोस्ट परचेज एवैल्यूएशन। जूता खरीद लिया, घर ले आए, पहनना शुरू किया। जब आप पहनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंफर्टेबल है या नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, सोल जो है वो उसका अच्छा है या नहीं है। अगर ये सब चीजें अच्छी होंगी तब आपकी पोस्ट परचेज एवैल्यूएशन बहुत अच्छी होगी और आप यही बाइंग प्रोसेस दोबारा फॉलो करेंगे और सेम चीज दोबारा खरीदेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी पोस्ट परचेज एवैल्यूएशन अच्छी नहीं होगी, उस केस में आप जो आपका बाइंग प्रोसेस है वो आप दोबारा इनिशिएट करेंगे और किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट या किसी और कंपनी की प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे। सो एवरीबडी, each one of us, irrespective कि हम छोटी से छोटी चीज़ खरीदें, like maybe a bottle of water, एज कम्पेयर टू बहुत बड़ी चीज़ खरीदें कि हम घर खरीद रहे हैं, हम गाड़ी खरीद रहे हैं, आप बाइंग प्रोसेस से गुजरते हैं। फॉर स्मॉल थिंग्स दिस एंटायर प्रोसेस माइट टेक अ सेकेंड, फॉर बिगर डिसीजंस दिस एंटायर बाइंग प्रोसेस माइट टेक मंथ्स, माइट टेक वीक्स, माइट टेक ईयर्स। सो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, आपका बाइंग प्रोसेस कैन बिकम वेरी वेरी शॉर्ट एंड इट कैन बिकम वेरी वेरी लॉन्ग। ना इस सब जो जितनी हमने पीछे बातें की, आप कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन कस्टमर से ले रहे हैं। आपने मार्केट रिसर्च की, आपने स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट किया, आपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, आपने कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन ली। मैं इंटरनेट पर जाती हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मैं अपनी सारी डिटेल्स देती हूँ, मैं किसी शॉप पर जाती हूँ, मैं वहाँ पर कार्ड फिल करती हूँ, मैं अपनी डिटेल्स उनको देती हूँ, मैं किसी और जगह से शॉपिंग करती हूँ, मैं उनको अपना ईमेल देती हूँ, मैं वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, मैं अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करती हूँ, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के पास चली जाती है। व्हाट हैपेंस इज कि जब भी मैं शॉप कर रही होती हूँ, जब भी मैं चीज़ें खरीद रही होती हूँ या जब भी मैं परचेज कर रही होती हूँ, एज अ customer I'm giving a lot of information back to the producers. Now this is जब इस सारी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और रिट्रीवल के लिए आगे यूज करने के लिए रखते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डेटा वेयर हाउसिंग। सो डेटा वेयर हाउसिंग बेसिकली इज जब आप अपने कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको एक जगह पर रखते हैं। ऑन द अदर हैंड डेटा माइनिंग इज कि जो सेम इंफॉर्मेशन जो आपने स्टोर की और कलेक्ट की, जब आप उसको सर्च करते हैं, सिफ्ट करते हैं और रीऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑल फीमेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो डेटा वेयर हाउसिंग में होगी। लेकिन डेटा माइनिंग ये होगी कि अगर उस सब फीमेल की इंफॉर्मेशन से आप ये इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आई वांट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट फीमेल्स बिटवीन द एज ऑफ 18 and 20 हैविंग अ सैलरी रेंज ऑफ 25,000 to 50,000, that is what we call as data mining. So data warehousing is just collecting information and keeping all the information with you regarding your stakeholders and your customers
एंड डेटा माइनिंग इज कि एज एंड व्हेन नीडेड आप उस इंफॉर्मेशन को अपने मुताबिक निकालते हो, ढूंढते हो और इस्तेमाल करते हो. अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, अ डिफरेंट एग्जांपल टू एक्सप्लेन टू यू दिस कॉन्सेप्ट इज कि जो आपका फ्रिज है वो वेयर हाउसिंग है. आप उसमें फ्रूट्स, आप उसमें वेजिटेबल्स, आप उसमें कोल्ड ड्रिंक्स, आप उसमें जूसेस, आप उसमें हर किस्म की चीज़ डाल देते हो. वो आपका वेयर हाउसिंग है, या स्टोर कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड माइनिंग इज कि अब आपको प्यास लगी, आपने अंदर से जूस निकाल लिया. दैट इज व्हाट माइनिंग इज. आपको गर्मी लगी, आपने बर्फ निकाली, पानी में बर्फ डालकर पी ली. दैट इज व्हाट माइनिंग इज. आपको भूख लगी, आपने टोस्ट निकाला, आपने बटर लगाया, बटर को टोस्ट पर लगाकर खा लिया. सो दैट इज व्हाट माइनिंग इज. सो डेटा वेयर हाउसिंग इज कलेक्टिंग एंड कीपिंग इंफॉर्मेशन, एंड डेटा माइनिंग इज कि जब उस इंफॉर्मेशन को एज एंड व्हेन नीडेड के ऑब्जेक्टिव से आप निकालते हो और यूज करते हो. दैट इज व्हाट डेटा माइनिंग इज. Now next thing that we're going to talk about is कि हमने बिल्कुल शुरू में आपसे बात की थी कि जी जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं. आप ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि खुद चीज़ यूज़ करते हैं, और फिर ऐसे भी कंज्यूमर्स होते हैं जो कि चीज़ ख़रीदते हैं ताकि उसको किसी और चीज़ बनाने के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल करें. ये जो कंज्यूमर्स होते हैं आपके कंज्यूमर मार्केट्स में, आपके वो ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि खुद इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, और इंडस्ट्रियल मार्केट में आपके वो लोग होते हैं जो कि एक चीज़ खरीदते हैं एज रॉ मटेरियल और उसको किसी और चीज़ के बनाने में इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने अभी बात की कि आपकी कंज्यूमर मार्केट्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट्स भी होती हैं. नाउ योर ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट्स आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट अप आर योर इंडस्ट्रियल मार्केट्स. इंडस्ट्रियल मार्केट्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. दीज आर दोज बिजनेसेस दैट बाय गुड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू other products or goods. Then you have your reseller markets. Reseller markets are basically, it consists of intermediaries who buy and resell finished goods. So जो retailers होते हैं वो basically आपकी reseller markets होते हैं. एक manufacturer से good खरीदते हैं और दूसरे customer को वो sell कर देते हैं. So that is what we call as a reseller market. And finally you have government or institutional markets as well. Government के भी बहुत सारे departments होते हैं, government के भी बहुत सारे offices होते हैं. जब governments अपने use के लिए चीज़ें खरीदती है तो वो आपकी गवर्नमेंट मार्केट्स है. सिमिलरली ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या स्कूल्स हो गए, जब या ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो कि नॉन गवर्नमेंटल हैं, जब वो अपने यूज़ के लिए लेट्स से चेयर्स एंड टेबल्स एंड कंप्यूटर्स खरीदती हैं, वो आपकी गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स हो गई. Now what we're going to do is we're just going to very briefly discuss कि जी आपके जो इंडस्ट्रियल बायर्स होते हैं उनमें और या ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स होते हैं उनमें, और एक कंज्यूमर में या कस्टमर में, मेरे और आप में क्या फ़र्क है. प्राइमरीली जो फ़र्क होता है वो दो चीज़ों में होता है. जो आपका इंडस्ट्रियल बायर होता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल बायर होता है, वो एक्सपर्ट होता है, वो नॉलेजेबल होता है, वो प्रोफेशनल होता है. मतलब कि उसको पता होता है कि उसने कौन सी चीज़ खरीदनी है, वो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा तादाद में ख़रीदता है, और वो ट्रेंड होता है निगोशिएट करने में. मैं और आप तो ट्रेंड नहीं होते ना. हम तो अपनी अम्मियों को देखते हैं, अम्मी को देखते हैं कि अच्छा अम्मी कैसे हैगल करती हैं या अम्मी कैसे प्राइस कम कराती हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं. मेरी आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती. ऑन द अदर हैंड एक ऑर्गेनाइजेशनल बायर या एक इंडस्ट्रियल बायर जो होता है वो ट्रेंड होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है, वो एक्सपर्ट होता है, और वो नॉलेजेबल होता है. सेकेंड थिंग इज कि जब मैं और आप कोई चीज़ खरीदते हैं, वी जनरली गो फॉर अ वन टाइम रिलेशनशिप विद द सेलर. हम जाते हैं, चीज़ खरीदते हैं, काम ख़त्म. ऑन द अदर हैंड जब ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग करती हैं या जब ऑर्गेनाइजेशंस चीज़ों को ख़रीदती हैं, उस केस में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जाती हैं. वो एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं जो कि फ्रीक्वेंट हो और इंड्यूरिंग हो और लॉन्ग टर्म हो. सो दैट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन योर इंडस्ट्रियल बायर्स एंड कंज्यूमर्स लाइक यू एंड मी. What we're going to do is we're going to end our lecture number 20 here. Again, it's a relatively longer chapter, so you need to bear with me a little longer, and we're going to finish this particular chapter in our next lecture, which is going to be the 21st lecture. Again,
Please have a look at your chapter number 10 before you read or listen to lecture number 21. पढ़ने से, chapter पढ़ने से सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि when I'm teaching you or when you're listening to my lectures, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से relate कर सकेंगे. So always अगर आप मेरा lecture सुनते हैं, सुनने से पहले सिर्फ एक दफ़ा बुक को पढ़ लिया कीजिए, फिर मेरा lecture सुना कीजिए और फिर दोबारा से बुक को पढ़ा कीजिए. It might sound cumbersome to you, but trust me when I say that, it's really going to help you a lot. So till lecture number 21, Allah Hafiz.